हेलो फ्रेंड्स, विजन एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दोनों में क्या डिफरेंस है तो देखेंगे हम। तो पहले हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन constant during circular motion if the speed of the particle remain constant it is called uniform circular motion। इसको हम शॉर्ट में यूसीएम बोल सकते हैं। क्या कहा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को? ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन constant it is called uniform circular motion। in this case ओनली द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस। इस केस में जो वेलोसिटी है वो चेंजेस होगा, जैसे ओनली द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट इन सच अ वे दैट द वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ। वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल रहेंगी पाथ से। In this case, only the direction of its velocity changes at every instant in such way that the velocity is always tangential to the path. The acceleration responsible for this is the centripetal or radial acceleration. Radial acceleration equals to minus omega square r. For UCM means uniform circular motion के लिए its magnitude is constant and it is a equals to omega square r equals to v square by r and equals to v omega. It is always directed toward the center of the circular motion, hence called centripetal। इसीलिए इसको सेंट्रीपिटल भी कहा जाता है। क्यों सेंट्रीपिटल कहा जाता है? क्योंकि इस केस में जो डायरेक्शन है वेलोसिटी डायरेक्शन चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट इन सच अ वे दैट द वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द path। the acceleration responsible for this the centripetal और acceleration, जो acceleration वो responsible रहेगा एक तो centripetal के लिए या फिर radial acceleration। तो radial acceleration हम a से डिनोट करते हैं, तो a सफिक्स r इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर r। For uniform circular motion its magnitude is constant and it is a equals to omega square r। इसी को बोलेंगे अपन v square by r equals to v omega linear speed into angular speed। तो it is always directed toward the center of the circular motion along r, hence called centripetal। आप फिगर में देख सकते हो डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जैसे फैन की बात कर सकते हैं अपन। व्हेन अ फैन इज स्विच्ड ऑन और ऑफ, जब हम फैन को ऑन कर रहे हैं या फिर ऑफ कर रहे हैं, द स्पीड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द फैन गो ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सिंपल से जब फैन ऑन कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ फैन क्या होगा? इंक्रीज होगा। ऑफ कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ फैन क्या होगा? डिक्रीज होगा ऑफ सम पॉइंट सम टाइम्स के लिए। तो however their direction are always tangential to their circular trajectories। तो during this time it is a non-uniform circular motion as the velocity is still tangential the centripetal or radial acceleration। तो is still there। however for non-uniform circular motion the magnitude of a is not constant। रेडियल एक्सेलरेशन constant नहीं रहेगा। क्यों? ड्यूरिंग दिस टाइम इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एज द वेलोसिटी इज स्टिल टेंजेंशियल द सेंट्रल और रेडियल एक्सेलरेशन इज स्टिल देयर। however for non uniform circular motion the magnitude of a is not constant। the acceleration responsible for changing the magnitude of velocity, the acceleration responsible for changing the magnitude of velocity is directed along or opposite to the velocity, the hence always tangential and is called as tangential acceleration। तो इसमें हम क्या बोलेंगे? इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि द एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डायरेक्टेड along or opposite to the velocity, hence
always tangential and is called as tangential acceleration. The as magnitude of tangential velocity v, as magnitude of tangential velocity v is changing during a non-uniform circular motion, the corresponding angular velocity omega is also changing at every instant. This is due to angular acceleration. Angular acceleration को हम डिनोट कर सकते हैं अल्फा से, तो अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी टी. यानी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन एंगुलर स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, डी ओमेगा बाय डी टी. The motion is non-uniform. The particles are still in the same plane. Motion is non-uniform. The particles are still in the same plane. Hence, the direction of alpha is still along the axis of rotation. The direction of alpha is still along the axis of rotation. So, for increasing speed, it is along the direction of omega, while during decreasing speed, it is opposite to that of omega. Motion is non-uniform. The particles are still in the same plane. Hence, the direction of alpha is still along the axis of rotation. For increasing speed, it is along the direction of omega. तो while during decreasing speed, it is opposite to that of omega. देख रहे हो आप डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इन फिगर. दोनों फिगर देखो, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है. और इसका डिफरेंस बिटवीन फिर क्या बोल सकते हैं हम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. क्वेश्चन भी आता है डिफरेंशिएट बिटवीन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है सर्कुलर मोशन विथ कंस्टेंट एंगुलर स्पीड इज नोन एज सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन विथ कंस्टेंट एंगुलर स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन विथ वेरिएबल एंगुलर स्पीड, सर्कुलर मोशन विथ वेरिएबल एंगुलर स्पीड इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था, सर्कुलर मोशन विथ कंस्टेंट एंगुलर स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सर्कुलर मोशन विथ वेरिएबल एंगुलर स्पीड इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो रहेगा. द अल्फा इक्वल्स टू जीरो बोल सकते हैं. और फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो नहीं रहेगा, वेरिएबल रहेगा. तो इसको हम बोलेंगे अल्फा नॉट इक्वल्स टू जीरो. फिर इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स इज जीरो. इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन क्या रहेगा, जीरो. वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स इज जीरो. और इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स इज नॉट जीरो. एक में यूनिफॉर्म सर्कुलर में टेंजेंशियल फोर्स जीरो रहेगा और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स इज नॉट जीरो. तो दोनों का एग्जांपल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एग्जांपल बोल सकते हैं मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. और नॉन यूनिफॉर्म सर्कल का बोल सकते हैं मोशन ऑफ बॉडी ऑन वर्टिकल सर्कल, मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन वर्टिकल सर्कल. तो ये था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इससे हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर में मोशन में दो कंडीशन है, एक तो सेम डायरेक्शन और दूसरी कंडीशन क्या रहेंगी, कंस्टेंट स्पीड. यूनिफॉर्म सर्कुलर में दो कंडीशन रहेंगी, दो कंडीशन के ऊपर डिपेंड रहेगा, सेम डायरेक्शन, कंस्टेंट स्पीड. यहाँ पे डायरेक्शन भी सेम रहेंगी, स्पीड भी कंस्टेंट रहेंगी, वो रहेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. और नॉन यूनिफॉर्म सर्कल इसमें दोनों कंडीशन नहीं है, ना कि सेम डायरेक्शन है, कंस्टेंट स्पीड भी नहीं है, इसमें वेरिएबल है. तो ये रहेगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. द सर्कुलर मोशन विथ कंस्टेंट एंगुलर स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. और सर्कुलर मोशन विथ वेरिएबल एंगुलर स्पीड इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो ये है डिफरेंस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में. तो आज के लिए इतना ही दोस्तों. तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.